This is a group of 25 people, some are still on the way. This is part of the Mere Ghar Aake To Dekho campaign, which Anhad in collaboration with 100 organizations launched across 27 states of India. And we encouraged families to go and meet each other. Especially we said the person has to be not from your religion, not from your caste, not from your region, not from your sexual orientation. The idea is to promote harmony, peace, to know each other and fight hatred which is being spread across the nation right now. So as part of the campaign which was launched on 15th August, here is a group which is going to Kupwara, and they are from different states. Everyone is going to introduce themselves. We will be living in villages with villagers in different around Lolab Valley and mainly in the Kupwara district, and they would be spending 3 to 4 days and nights with them. As part of the campaign, we will also meet other villagers. Main idea is to understand Kashmir, to understand the people of Kashmir, their culture, and at some level, build the real narrative around Kashmir. What is real Kashmir and what are the Kashmiri people? मेरा नाम अजय है और मैं वाराणसी से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से। मोहब्बत की जहाँ भी बात होगी हम वहाँ पे खड़े हैं। मेरा नाम अरुणेश है और मैं बेंगलोर से हूँ। और ये जब हमने सुना कि शबनम जी ने ये इनिशिएट किया ऑल इंडिया अगस्त 15 से लेकर जनवरी 30 तक कि मेरे घर आके तो देखो, तो बेंगलोर में हमने कन्नड़ा में एक वेरी फेमस पोएट है कुवेम्पू, उन्होंने एक पोएम लिखा है जिसका नाम है तेरे दिदे मने ओबा अतिथि। इसका मीनिंग है मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, आइए मेहमान जी। तो वही जो प्रोग्राम जो हम कन्नड़ा में भी ट्रांसलेट करके कैंपेन किए हैं। मकसद तो आप सबसे सुना है कि जिनके वजह से हम कम जानते हैं, फहमी होती है गलत, या जो हमारी विचारधारा जो मिलते जुलते नहीं है क्योंकि वो हट के होते हैं, उनसे हम अगर हम नज़दीक आएंगे तो दीवारें टूट जाएंगी। और मेरा नाम भावना है और मैं दिल्ली से आई हूँ। इनिशिएटिव जो इस तरह का है, वो जिस तरह से माहौल आजकल पूरा बना हुआ है, इतना एक दूसरे को लेके नफ़रत है, चाहे वो कास्ट हो, रिलीजन हो, चाहे कम्युनिटी हो, आई थिंक ये इस तरह का इनिशिएटिव बहुत ज़रूरी है कि शुरू करा जाए। और मतलब ये ऐसा नहीं कि कोई दिनों पे करा जाए, ये हमें हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में इसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जैसे मैं कश्मीर फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और मैं बहुत ही एक्साइटेड थी क्योंकि बचपन से एक था कि कश्मीर जाना है। बट जब आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं जो कि उसमें मेजॉरिटी नेगेटिव ही होता है। तो आपको ये था कि जब ये आया, डिसाइड हुआ कि ये प्रोग्राम का, तो मैं बहुत एक्साइटेड इसलिए थी क्योंकि जो मेरे दिमाग में जो बचपन से जो मैं सुनती आ रही थी चीज़ें, तो मेरे को ये था कि मुझे उन सब चीज़ों को तोड़ना है। Raja Rajiv Kumar, I'm from Kerala. I grew up in a community in a place where we never used to differentiate people based on the religion. We had, ensured that for generations we ensured that there is no communal problems in our state. Unfortunately, recently in the last 20 years, about 25, 26 years you can say, things have been moving very bad, and I feel very hurt. Personally feel hurt because I got friends from every community, every caste, and many times I even don't know whether they're Muslims or Christians or backward communities, or unless at some point in time they announce it or someone announces it. I have Muslim friends whom I didn't know they were Muslims. The names were neutral names, and it hurts me when a group of people try to picture them as villains. I mean, it's actually hurting me more than it hurts them, because it hurts my credibility, it hurts my feelings. So when Shabnam ji had started this program, I was quick to try to do whatever way to support her. And when she said she'd come to Kashmir, I always wanted to come to Kashmir, and I took this opportunity to come. मेरा नाम नूरजहां दीवान है और मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ। यहाँ आने का मकसद एक ही था कि गुजरात का जो माहौल था और 2002 के बाद जो माहौल हमने देखा है, नफ़रत की जो राजनीति चली है, गुजरात से शुरुआत हुई है और अभी तो पूरे भारत में वो नफ़रत की राजनीति चल रही है। तो अनहद के द्वारा ये जो कैंपेन चलाया गया है, एक अच्छा कदम उठाया है। वैसे तो अनहद पिछले 20 साल से कंटिन्यूस
पीस को लेके काम करता था। मगर अभी जो नया कैंपेन शुरू किया है 15 अगस्त से, उसकी शुरुआत की थी कि मेरे घर आके तो देखो। गुजरात में काफ़ी लोग हिंदू मुसलमान के यहाँ गए, मुसलमान हिंदू के यहाँ गए, और जो हिंदू गलत समझ रहे थे कि मुस्लिमों में 4 बीवी होती है, 20 बच्चे होते हैं, तो वो हिंदुओं को हम मुसलमानों के घर जब फर्स्ट टाइम लेके आए, मुस्लिम बहनों से मिले, मुस्लिम भाइयों से मिले, तो उन्होंने रो दिया कि ये जो जिस तरह से आरएसएस बजरंग दल जो नफरत फैला रहे हैं और मुसलमानों के बारे में जो गलत बातें कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। मुसलमानों के घर में एक ही बीवी है, 2-3 ही बच्चे हैं, 20-25 बच्चे तो है नहीं। तो वो जो मानसिकता थी ना कट्टरपंथी वाली और आतंकवादी वाली, वो सारी मानसिकता हट गई है और एक नफरत की दीवार हट के प्यार मोहब्बत की दीवार चल रही है। और कश्मीर को लेके हमने बहुत कुछ सुना था, तो कश्मीर आने का मकसद यही था कि कश्मीर के लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, भाईचारा फैलेगा। और वाकई कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं। 3 दिन से हम आए देख रहे हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, कहीं घूमने भी जाते तो रास्ता दिखाते हैं, हर तरह से उनका सपोर्ट है। गाड़ी हमारी निकलती तो रुक जाते हैं, रास्ता दे रहे हैं, हम चल के जाते तो वो फ़ौरन रुक जाते हैं। तो वाकई में कश्मीर के लोग बहुत प्यार मोहब्बत वाले हैं और हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा प्यार मोहब्बत फैले, तो इसीलिए ये कैंपेन हमने चलाया है। और किसी शायर ने कहा है कि मैं अकेला ही चला था जानी भी मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा बढ़ता गया। तो अनहद के थ्रू ये कारवा चालू किया है, मेरे घर आके तो देखो। ये कारवा पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा और नफरत की राजनीति भुला के लोग प्यार मोहब्बत की राजनीति में आएंगे। मेरा नाम दुर्गा भुसारी है, मैं मुलुंड मुंबई से आई हूँ और कश्मीर के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रही है पहले से। मैं कश्मीर में पहले भी आ चुकी थी और कश्मीर का जो टूरिज़्म पार्ट है वो मैंने देखा था। ये कैंपेन के ज़रिए मुझे ऐसा लगा कि मैं जो कश्मीर के रूरल पार्ट्स है उसको देख पाऊँगी, उनकी लाइफस्टाइल देख पाऊँगी और समझ पाऊँगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर के बारे में जो एक मिसकंसेप्शन है लोगों का, वो इस देश से हटाना बहुत ज़रूरी है और वो काम करने के लिए हम जैसे लोग ही आगे आ सकते हैं। तो आमिर खुसरो जी की 2 लाइनें थी, अगर फिरदौस बर रुए ज़मीन अस्तो हमीन अस्तो हमीन अस्तो हमीन अस्तो। तो ये जो चीज़ है ये पूरे भारत को प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये एक कैंपेन है जो हमारे लिए एक छोटा सा ज़रिया है इसके लिए। मेरा नाम शीतल है, मैं मुंबई महाराष्ट्र से आई हूँ। कश्मीर में बहुत बार आ चुकी हूँ, इसके पहले भी काफ़ी 3-4 बार। आप यहाँ के जो लोग हैं बहुत मिलजुल के सब, यानी बहुत सारा प्यार देते हैं जब कश्मीर में आना होता है। इस टाइम में पहली बार किसी के घर जाके रुकना चाहती हूँ ताकि हम अपना उनका कल्चर, उनका डाइवर्सिटी समझ पाऊँ। और वैसे ही वो लोग भी बहुत प्यार देते हैं, हम भी अपना बहुत प्यार बांटने आए हैं यहाँ पर। गीता हजारिका हूँ, मैं असम से हूँ। मैं दिल्ली में लॉ प्रैक्टिस करती हूँ। ये मेरा पहला विजिट है कश्मीर में और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं कश्मीरियों के घर में रह के मैं कश्मीर के बारे में जानने को मुझे मौका मिला, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आई हूँ। मेरा नाम रुखसाना है, मैं भी वकील हूँ, मैं दिल्ली से आई हूँ। मुझे लगता है जिस चीज़ के बारे में हम जानते नहीं उससे हम डरते हैं, तो हमारा जो नॉलेज कश्मीर के बारे में है वो मेनली है जो हम टीवी में देखते हैं और जो महसूस करते हैं। और असल में इंडिया के लोग जो है वो गांव में रहते हैं, तो जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे कश्मीरी कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है। और हमने तो बहुत सुना है कश्मीर के मेज़बानी के बारे में और आके हमने देख भी लिया। तो हम कश्मीर के लोगों को और कश्मीर के बारे में जानने का ये एक हमारे लिए ज़रिया है। और ख़ासकर क्योंकि इंडिया में अभी अदरिंग जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि ये लोग अलग है, हमसे अलग धर्म के हैं और एक नफ़रत फैलाने का जो बात चल रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए हमें खुद जाके जानना बहुत ज़रूरी है और उन्हें अपने पास बुला के जानना बहुत ज़रूरी है ताकि अपनापन बढ़े और प्यार बढ़े। यही हमारा मकसद है। नमस्ते, मेरा नाम सचिन बुसारी है, मैं बम्बई से हूँ और मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि हम लोग मीडिया से तो अलग अलग बातें सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि जो हम अपनी आँखों से देखेंगे, अपने खुद से जो फील करेंगे, लोगों से बातें करेंगे, लोगों से मिलेंगे, उनको समझेंगे, उनके व्यूज़ समझेंगे, तो यहाँ के हालात अच्छी तरह समझ में आ सकते हैं। तो ये फील करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ढेर सारा प्यार लेके आया हूँ, कश्मीरियों को देने आया हूँ और मैं बहुत विश्वास रखता हूँ कि हम सब एक हैं
और ये यूनिटी बढ़ाने के लिए मैं आया हूँ। मेरा नाम डोमिनिक लोबो, मैं मलाड मुंबई से हूँ और मैं एक्चुअली ये कैंपेन था मेरे घर आकर को देखो, तो उधर मुंबई में मैंने अटेंड किया था, बहुत अच्छा लगा। अलग अलग 3-4 कम्युनिटीज़ थे, हिंदू, मुस्लिम, मैं क्रिश्चियन था और हम थोड़े चर्चा किया था कैसे प्रॉब्लम मुंबई में हो रहा है कि जो इतना कॉस्मोपॉलिटन जगह है उधर भी मुस्लिम को तकलीफ़ हो रही थी। तो हमको आश्चर्य हुआ और हम उस पर बहुत अच्छा बात किया और तो मैं बोला ये बहुत अच्छी प्रोग्राम है, मैं इसमें जुड़वाना चाहता हूँ। तो फिर इसके बारे में मैं सुना तो मैं सोचा यहाँ कश्मीर में आकर हम देखें कश्मीरी लोगों का क्या प्रॉब्लम है और कैसे क्या क्योंकि उनके बहुत मैंने कुछ कश्मीरियों से मिले, बहुत अच्छे लोग हैं, तो कैसे वो सह रहे तो उनसे जुड़े हैं तो अच्छा है, तो इसलिए आए। मेरा नाम गोपाल अयंगर है और मैं पूना महाराष्ट्र से हूँ। मैं अर्लियर डेज से ही मुझे ये शौक़ था कि किधर भी घुस जाओ, लोगों के साथ बैठ जाओ। हम बस में जा रहे हैं तो बीच में उतरते हैं कि कहाँ जगह रह जाते, तो मुझे लगा कि वो एक्सपीरियंस है कि सब जगह सब एक ही है, करेक्ट, एट वन लेवल। अब ये जो प्रोग्राम आया और हमें कश्मीर के बारे में ओनली सेकेंड हैंड पता था। हमारे स्टूडेंट्स बहुत हैं, एक स्टूडेंट अभी भी इधर है अपना अनंतनाग में, बोला आके देखें, बढ़िया। यहाँ तक कल हमारा एक आश्चर्यपूर्ण एक्सपीरियंस हुआ कि एक आदमी मेरे को पूछा, भारत में लोग हमारे बारे में ऐसे क्यों सोचते हैं? आई डिडंट नो व्हाट आंसर। तो मैंने बोला कि जब मैं जाऊँगा तो मैं भारत के लोगों को बोलूँगा कि आप कैसे हैं। सो आई डू होप दिस वर्क्स। मेरा नाम दीन मोहम्मद मामले का है और मैं हरियाणा नूहू मेवात से आया हूँ और मैं भी यही देखने आया हूँ जो कश्मीर के बारे में हम सुनते हैं कि हम लोगों से मिलें और वहाँ जाकर उन लोगों के बीच में रहें तो पता चलेगा कि हम में और उनमें क्या फ़र्क है। और हम भी चाहेंगे कि वो जो कश्मीरी लोग हैं वो लोग भी हमारे यहाँ आएँ। और एक मुझे याद आ रहा है, मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, मेवात विकास सभा से। तो 2014 में मेवात विकास सभा ने जब पुलवामा में एक परेशानी आई थी फ्लड की, तो उसमें भी 1,51,000 रुपये मेवात विकास सभा ने दान किया था, उसमें दिया था, भेजा था हमने। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके लोगों को भी वहाँ इनवाइट करें और वो लोग भी वहाँ हमें देखें, हम उनको देखें और एक पीस और हारमोनी का माहौल बनाएं। मेरा नाम देव देसाई है और मैं गुजरात से हूँ। मैं कश्मीर ये मेरे घर आके तो देखो कैंपेन में इसलिए आया हूँ कि पूरे देश में कश्मीर के नाम पे जिस तरीके से नफ़रत बढ़ाई जा रही है, कश्मीर को 2 ही तरीके से जाना जाता है, या तो टूरिज़्म या टेररिज्म। तो टेररिज्म के नाम पे बाकी राज्यों में जिस तरीके से हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है, हिंदू मुसलमान को एक दूसरे से दूर करने की जो कोशिश की जाती है, उसको कैसे ओवरकम किया जाए और शांति, भाईचारा, मोहब्बत का संदेश इस देश को मिले, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, गुजरात में भी कर रहे हैं। और इसीलिए कश्मीर आया है कि कश्मीर को जान के अपने लोगों को जाके बताए कि कश्मीर एक्चुअली हमारे जैसा है, वो हमारे जैसे ही लोग हैं, हमारे जैसे ही मोहब्बत करने वाले लोग हैं और सब साथ में शांति सौहार्द से रहे। मेरा नाम गीता है और मैं दिल्ली से हूँ और मैं भी ये मेरे घर आकर तो देखूँ कैंपेन से जुड़ी हूँ। 15 अगस्त को हमने भी दिल्ली में इस पे हम लोगों ने गेस्ट को इनवाइट किया था और गए भी थे हम लोग। और अब मैं एक्साइटेड हूँ कश्मीर में कि इनवाइट किया गया है और हम लोग यहाँ पर आकर के यहाँ के कल्चर को, यहाँ के लोग, वैसे मैं अभी दूसरा दिन है मुझे यहाँ पे, मैं ऑलरेडी लोगों से मिली हूँ, इतने सपोर्टिव लोग हैं और बड़े प्यार से बात करते हैं और सपोर्ट करते हैं कि अच्छा नहीं यहाँ से मत जाना, ये रास्ता लंबा पड़ेगा, यहाँ से जाना ये शॉर्ट पड़ेगा, यहाँ से कम खर्चा आएगा। मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे, सेकंड डे मज़ा आया। हाँ, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं दिल्ली से हूँ और ये जो मेरे घर आके तो देखो मुहिम से जुड़ा हूँ और हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो ये हम लोगों ने पिछले 15 अगस्त पे भी ये इनिशिएटिव लिया और अलग अलग घरों में हम लोगों ने होस्ट और गेस्ट जोड़े और दिल्ली में अच्छे से हुआ। अभी क्योंकि अनंत के साथ में जुड़कर हम लोगों ने यहाँ कश्मीर में आए हैं तो
टू वे कम्युनिकेशन, जो परसेप्शंस बेस्ड लोगों की सोच है कश्मीर को लेके कि हम दूर से देखते हैं कश्मीर कैसा है और पास में आके कश्मीर के लोगों से मिलना, सोशल इकोनॉमिकल चीज़ों को समझना कि कैसे लोग जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, और फिर एक कंपैरेटिवली हम कैसे सब एक देश को एक बहुत सुखद और प्रेम मोहब्बत सब मिलकर रहें, कैसे रहें, वो हम लोग समझने जानने के लिए, बताने के लिए। मैं भाविनी हूँ, मैं अहमदाबाद गुजरात से आई हूँ और मैं इंडिगो एयरलाइन में फ़्लाइट मैनेजर थी। मैंने अभी भी रिसेंटली जॉब छोड़ा है और बस हम यहाँ पे आए हैं कश्मीर देखने और लोगों से मिलने, इनका कल्चर जानने, इनका थॉट प्रोसेस जानने की क्या है, कैसा है। हम भी जानना चाहते हैं कि यहाँ पे लोग इस माहौल में कैसे रहते हैं। दैट इज़ ऑल। पहले तो मुझे था कि ऑफ कोर्स हम तो जो हेडलाइन थे वो पढ़ते थे, जैसे कि कहीं ब्लास्ट हो गया, कहीं कोई एनकाउंटर हो गया, और बस ये एक वन लाइनर पढ़ते थे। अब यहाँ आके मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगता है कि हाँ, मैं एज अ गर्ल मैं अकेले भी आ सकती हूँ यहाँ पे और इस माहौल में रह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे हम नॉर्मली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं तो एवरीबडी इज़ ईगर टू हेल्प यू, सब आते हैं, एड्रेस पूछते हैं, बैग्स के साथ हेल्प करते हैं। तो जो मैं वहाँ बैठ के सोच रही थी उससे कश्मीर, जम्मू कश्मीर बहुत डिफरेंट है, यहाँ के लोग बहुत डिफरेंट है।